today, I feel a certain kind of victory. The victory of snatching that power from the fascist and bestowing it in the pages of Hum Dekhenge. This victory is also very, very personal to me, but it is more a victory of history and of the people on the right side of the history. I congratulate Asif Bhai and Muhammad Meherban for giving us this victory in the form of a treasure. When I first saw the book, it brought back powerful memories that I want to relive. But as I turned the pages, the horror unfolded in front of my eyes. But I did not want to turn away. I watched it till the very end. It is the blood that glows red and shouts, Azadi, louder after being spilled. It's the blood of the martyrs, unseparated from the pain, the suffering, the betrayal and the injustice that comes with it and that lies with us and that even haunts us till today. Before I end, I cannot but caution us all again to continue resisting in the face of forgetfulness against developing amnesia about our friends who continue to fight a long battle in jails. This is exactly what this photo book tells. That we remember every single thing that happened. What happened on 7th of December. What happened on 10th of December in Aligarh Muslim University. What happened on 13th of December at Jamia Millia Islamia. And then what happened at Aligarh Muslim University and Jamia Millia Islamia on 15th of December. How Shaheen Bagh came to exist. How it was an effort of Sharjeel Imam and Asif Mushtaba. We remember the violence that followed in UP. We remember the resistance that started from these two Muslim campuses and how it sprung up like mushrooms all over the country. We remember everything all too well. And this photo book forces us to keep on remembering. It reminds us. It forces us to not look away. The brutality that happened, the powerful images of the resistance of Muslims of India. It's important to understand the importance of these images. Most of the time what happens is that these images, especially images of brutality, images of violence, they are normalized to the extent that it does not really, we are left emotionless. No one bats an eye, no one thinks something wrong is happening, that this should not have happened to Minhajuddin who lost his eye. No one thinks that it's a problem that the state machinery, that the state is using police and along with rioters and arsonists burning down houses, lynching people to death, lynching Muslims to death in Northeast Delhi. And what this photo book does is that it forces us to look at these images with our own eyes, and it fills our eyes with so many emotions. An emotion of victory like Safura Appa just talked about, and an emotion of extreme anger that we are not going to let this violence be normalized. We are not here for reality. We are here for a point of view. It's like that's the basic of fascism or Nazism, the kind of ideology which is running in India, that they don't talk about reality. They have a point of view. If you are seeing a Muslim here, if you are seeing a Dalit here, if you are seeing an Adivasi here, if you are seeing an OBC person here, so at that moment they'll be having a point of view. They don't want to even to interact with you. They don't even want to talk to you. They don't want to even to have a tea with you. But at the moment they will be having a point of view. That is the fascism one. But the book by my friends Meherban and Asif Mushtaba, what actually does is to document. And this documentation is also very important. If you see in now, even I think Indian government once proposed that in a global convention that
against the narrative of Holocaust. There are many such narratives is there that Holocaust didn't happen. Maybe in after some times, people will say the anti-CAA movement didn't happen, the Northeast Delhi program didn't happen, but this photo book, this documentation is a clear-cut reality and clear-cut evidence for the in the history to showcase, to resist, to protest, and to give an evidence that these things happened in India. लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लौहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, जब ज़ुल्म ओ सितम के गोहे गराम जब ज़ुल्म ओ सितम के गोहे गराम रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। जिस दिन का वादा है वह ऐसा नहीं है कि आने वाला है, बल्कि वो रोज रोज चल रहा है। जो किया गया, जो किया जाएगा और जो किया जा रहा है, उन सब में एक रिश्ता है। इसलिए हम यहाँ आज किसी बीत गई चीज़ को याद करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम एक मुसलसल चल रही चीज़ में हिस्सा लेने के लिए बैठे हैं और याद करना उसी का एक अंग है। यह बात अभी कुछ दिन पहले जब प्रेस क्लब में हम लोग इकट्ठा हुए थे, 15 दिसंबर 2019 के 2 साल पूरा होने पर, और उस दिन भी याद की गई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हुआ उसकी, और उसके बाद जो एक शानदार आंदोलन, एक शानदार मुहिम शुरू की शाहीन बाग की औरतों ने, उस मुहिम का चर्चा हुआ और कैसे शाहीन बाग धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में उग आए और किस तरह एक संघर्ष, और संघर्ष कहते ही हमारे दिमाग में कड़वाहट, हमारे दिमाग में तीखे नारे, ये सब कुछ उभरते हैं, लेकिन शाहीन बाग की याद करते ही मोहब्बत और दावत की याद आती है। एक ऐसी जगह जहां जाकर आपको सुकून का एहसास होता था, एक ऐसी जगह जहां जाकर आपको लगता था कि आप अपने लोगों के बीच हैं और जहां आपको होना चाहिए। तो हम आज सिर्फ याद करने नहीं बैठे हैं, बल्कि यह कहने बैठे हैं कि याद करना बीत जाना नहीं है किसी चीज का, उसको जारी रखना है। इससे ज्यादा मुश्किल था ये सोचना कि हम नाम क्या रखें। बहुत डिस्कशंस हुए, कई सारे नाम हुए, लेकिन एक सहमति नहीं बन पा रही थी नाम रखने की। 3 बड़े इवेंट्स हैं जो पिछले दिसंबर 2019 से मैं जिनका पार्ट रहा हूं। शाहीन बाग, मैंने, शर्जील, बाकी तमाम लोगों ने जिसकी नींव रखी 15 दिसंबर को। नॉर्थ ईस्ट के दंगों में पहले दिन से ही
रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम देखा, मैंने अपने सामने दर्जनों से ज्यादा जनाजे देखे, मैंने 85 फैमिली से बात की जिन्होंने अपनों को खोया था इन दंगों में। और जब एक कम्युनिटी जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज की है, उनकी बस्ती को जलाया गया कंचन कुंज में, तो उसका रिलीफ का काम देखा उनके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग द रिलीफ वर्क टिल टुडे। तो एक सवाल था हमेशा जहन में कि जब इतना जुल्म है, इतनी नाउम्मीदी है, तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया था, उसके बाद भी एक FIR होती है 59 ऑफ 2020 और दर्जनों बार आप इंटरोगेशन के लिए बुलाए जाते हैं। तो जब बुक क्यूरेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि इस मुल्क में सही मायने में इंसाफ मुसलमानों को मिलना तो एक यूटोपियन है। दंगों में मैंने सीखा मुसलमानों के लिए रिलीफ ही एक इंसाफ है जो उनको मिलता है, अगर वो सुकून से सांस ले रहे हैं। So they should consider it as a justice. This is what the structure of state has been. तो जब आप मजलूम हैं और एक जालिम है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तब आप उस जालिम की आंख में आंख डाल के बोलते हैं हम देखेंगे, हमको इस दुनिया में आप इंसाफ नहीं दिए, हम आखिरत में देखेंगे। तो शाहीन बाग की दादियों ने जो ठंड में 5 डिग्री पे बैठी हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो सरकार की आंख में आंख डाल के बोलेंगी हम देखेंगे। पहली बात यह है कि एंटी CA प्रोटेस्ट समाप्त नहीं हुआ है। आज भी असम में जो NRC के संबंध में जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो इसी का एक हिस्सा है, और उसके विरोध में जो साथी वहाँ लड़ रहे हैं, मैं समझती हूँ ये एंटी CA प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हुई लड़ाई है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एंटी CA प्रोटेस्ट की आज प्रासंगिकता ये भी है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर NPR को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन कर लिया है। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अमित शाह की क्रोनोलॉजी का पहला हिस्सा है। NPR, NRC और CA को लागू होगा। तो आज सेंसस के साथ जो NPR का जो क्वेश्चनर है, वो क्वेश्चनर को तैयार करके वो रजिस्ट्रार जनरल को बताया गया है, लेकिन ये भी गैर कानूनी है क्योंकि सेंसस की अलग कानून है, NPR सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर कानून है। तो आज जो NPR के बारे में इन्होंने पहलकदमी की है, मैं समझती हूँ कि इस मंच के द्वारा हमें ये बहुत सख्त तरीके से इसका विरोध करने की ज़रूरत है। आप सबको याद होगा कि एंटी CA की प्रोटेस्ट की दबाव में 10 से अधिक प्रदेश सरकारों ने भी ये ऐलान किया था कि वो अपने अपने प्रदेश में NRC लागू नहीं करेंगे। तो आज दोबारा ये ज़रूरी है कि हम लोग सब जो CA की विरोध की लड़ाई में शामिल हैं, आज भी NPR के बारे में हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इस तरह मोदी सरकार को ये जवाब हमें देने की ज़रूरत है कि आपने एंटी CA प्रोटेस्ट को जिस दमन के साथ समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी वो संघर्ष जारी है। आज भी हिंदुस्तान की नागरिक तुम्हारी क्रोनोलॉजी को नहीं मानेगी। Now the importance of this book as a photographic book, I think we should realize that as all the speakers have spoken, this is actually part of the struggle which is ongoing. And this is a weapon in the part of that struggle. And I feel that the importance of the still photograph
is extremely important, much more than video or cinema or a little more ephemeral media, which one sees and then it passes by and you tend to forget it. The importance of a published book is that it is there in front of you. You can open it again and again and again. And photographs become iconic. And I'm also very pleased that the book is dedicated to the great photographer Danish Siddiqui, young man, also graduate of Jamia, who tragically lost his life, but made such powerful images during this struggle and earlier struggles. कई लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया गया और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ऑलरेडी निकल चुका है कि अभी तक NRC CAA को इम्प्लीमेंट सरकार नहीं कर पाई। इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखकर उसको नहीं कर पाई। लेकिन देखिए, आज इस देश में जो दौर चल रहा है, हम लोग उससे सब वाकिफ़ हैं कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही नहीं अत्याचार हो रहा, वो तो खैर हो ही रहा है, लेकिन इस देश के सारे संस्थानों को ध्वस्त किया जा रहा है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस को तो खैर ध्वस्त कर ही दिया गया है, NIA, CBI जितनी भी जांच एजेंसीज हैं उनको, ED, इनकम टैक्स, लेकिन उसके साथ साथ न्यायपालिका, मीडिया, इन सबको ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में सिर्फ लोकतंत्र और संविधान ही नहीं खतरे में है, इस देश में सभ्यता ही खतरे में है, क्योंकि सभ्यता के ऊपर हमला किया जा रहा है। जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह के झूठ, जिस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है, ये तो हमारी बिल्कुल सभ्यता को ही ख़त्म कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है, एक आशा की किरण ये है कि ये सब चलते हुए भी, देखिए जैसे आसिफ ने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो स्पिरिट है रेजिस्टेंस की, और वो आज ख़त्म नहीं हुई है, वो पूरी तरह से ज़िंदा है। और अब हम देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन भी बदल रही है, बड़ी तेज़ी से बदल रही है। और जैसे जैसे पब्लिक ओपिनियन बदलती है, हम देखते हैं कि कई सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस भी, खासकर न्यायपालिका भी अपना रुख बदल लेती है। तो अब हम न्यायपालिका का भी रुख धीरे धीरे बदलता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस देश में, कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, ऐसा नहीं है। ये हमको नहीं सोचना है, हमको खड़े रहना है, लड़ते रहना है, और अल्टीमेटली इन जालिमों की हार होगी। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.